Hello, my dear students. So, in the last class, we talked about raw materials required for photosynthesis. Today, we will be talking about the steps involved in photosynthesis. Again, a very important topic with respect to the board, because बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है. तो क्यों ना हम ये 3 मार्क्स को एकदम सिक्योर कर लें और हमारा 3 मार्क्स हमारे हाथों में आ जाए. तो उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं विथ फुल डेडिकेशन एंड विथ फुल फोकस. So in the yesterday's class, we talked about the raw materials necessary for photosynthesis. And उससे related questions क्या आता है बोर्ड में वो मैं बता देती हूँ. कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि explain the raw materials required for photosynthesis and how they are made available by the plant. या दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एक्सप्लेन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, हाउ इट इज रेगुलेटेड. तो ये 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उस टॉपिक से पूछा जाएगा. Today we'll talk about the steps involved in the process of photosynthesis. What are the steps? मतलब कि how plant is going to make the food. Raw material available हो गया, सब कुछ हो गया, अब उनको खाना बनाना, तो कैसे बनाएंगे. तो इसको पढ़ने के लिए so today we'll discuss about the steps of photosynthesis. तो I'm writing over here steps. I'm writing over here the steps involved in photosynthesis. ठीक है. So here steps. So in this we'll discuss the steps. I will explain these steps by using 5C rule. Which rule? 5C rule. ठीक है. इससे so that आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाए और कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे. 5C में क्या क्या आएगा. सबसे पहला the first C will be your chlorophyll. Second C will be your conversion. This is the 5C rule. The third C will be your chemical energy. Fourth C will be your CO2 and fifth C will be your carbohydrate. ठीक है. So using the first C, what will happen? First, I'm using the first C and I will make the first step. See, chlorophyll will trap the sunlight. This is the first C and the first step. Absorption of light energy by the chlorophyll. Light energy means solar energy. ठीक है. So chlorophyll will trap the solar energy. This is the, I have used the first C and I have made the first step involved. Second C, I will use conversion and chemical energy. Using these 2 C, I'll make the second step. That is the light energy which was trapped by the chlorophyll will be converted into chemical energy. What I said? Ki conversion of the light energy into chemical energy, and this energy will be used to split the water molecule to produce hydrogen and oxygen. हो गया second step. पहला स्टेप क्या बताया मैंने, पहला सी यूज करके मैंने क्या बताया आपको कि क्लोरोफिल विल ट्रैप द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप बनेगा बाय यूजिंग द C number 2 and C number 3, that is conversion and chemical energy. तो लाइट एनर्जी, conversion of light energy into chemical energy, and this chemical energy will split the water molecule into hydrogen and oxygen. So step number 2 भी हो गया और हमने 3C यूज कर लिया. अब ये जो ऑक्सीजन है हुआ है, दिस ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. दिस इज द O2 व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब ये जो हाइड्रोजन बचा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, दिस हाइड्रोजन विल कंबाइन विद द फोर्थ C, दैट इज CO2. ठीक है. And we know that adding of hydrogen, what it is called, reduction. So this is the last step, that is reduction of carbon dioxide into the fifth C, that is carbohydrate. So by using the 5C rule, we have discussed the steps of photosynthesis. What are the 5C? Chlorophyll, conversion, chemical energy, CO2 and carbohydrate. पहला C, that is chlorophyll. Chlorophyll will absorb the light energy. पहला step. Now I am using the C number 2 and C number 3, that is conversion of light energy into chemical energy,
and using this chemical energy to split water into hydrogen and oxygen. ऑक्सीजन बाहर निकल गया. अब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से फोर्थ नंबर सी से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और फिफ्थ सी बना देगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है, दिस इज द फूड ऑफ द प्लांट, दैट इज ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट के बारे में मतलब क्या बात करें हम लोग यहाँ पे, ग्लूकोज. दिस इज द फूड ऑफ द प्लांट. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. हो गया ना इजी, मैंने इजी कर दिया आप लोग को, और ये आप कभी नहीं भूलेंगे. अब इक्वेशन भी पूछी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इसको भी रिमेंबर करने का मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ. देखो कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और CO2 1 कार्बन मॉलिक्यूल है. तो अगर हमको ग्लूकोज बनाना है तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मुझे जरूरत पड़ेंगे, 6 CO2. ठीक है, पहला रॉ मटेरियल हो गया तो 6 CO2. इसका डबल सेकेंड रॉ मटेरियल दैट इज वाटर हमने यूज किया. 6 CO2 डबल यानी 12 वाटर यूज किया. इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा. जितना हमने CO2 लिया उतना ही O2 प्रोड्यूस होगा, उतना ही वाटर प्रोड्यूस होगा. हो गया ना याद. सो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया. क्लियर ना. तो हमने स्टेप्स भी पढ़ लिया, हमने इक्वेशन भी पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस के. अब एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान देंगे हम लोग, इस पे फोकस करेंगे. अब एनसीईआरटी बोल रहा है कि दीज स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर इमीडिएटली. ठीक है, मतलब ये जो तीनों स्टेप्स हमने पढ़ा अभी कि क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल विल एब्जॉर्ब सनलाइट, फिर कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो स्टेप्स है, ये तीनों स्टेप्स को वन आफ्टर द अनदर होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, किस केस में, फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट में वन आफ्टर अनदर नहीं होते हैं. क्यों डेजर्ट प्लांट में, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, डेजर्ट प्लांट, देखो नेक्स्ट लाइन क्या बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट take up CO2 at night and prepare an intermediate. Why desert plant take CO2 at night? To prevent water loss. ठीक है, to prevent water loss. ये भी अपने आप पे क्वेश्चन हो गया कि why desert plant take carbon dioxide at night. That means why they open their stomata at night. Why? ठीक है, तो इसका आंसर मैंने दे दिया, क्यों, to prevent water loss. ठीक है, just a second. Why? So why desert plant open their stomata at night or they take up carbon dioxide at night? To prevent the water loss by the process of transpiration. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और एक इंटरमीडिएट बना देंगे. उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, मैलिक एसिड. आपको याद रहेगा तो आप याद रखना, अदरवाइज आप इंटरमीडिएट भी लिख सकते हो, मैलिक एसिड. ठीक है, एनसीईआरटी बता नहीं रहा है, इसका नाम नहीं बता रहा है, बट मैंने आपको बता दिया, आपको याद रहे तो आप याद रखना, अदरवाइज इंटरमीडिएट बना के छोड़ देगा. और विच विल बी एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे टाइम. इस मैलिक एसिड पे सोलर एनर्जी पड़ेगी और आगे प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. अभी के लिए बस इतना जानना है कि ऑल द स्टेप्स विल नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर. इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट क्या कर रहा है, रात के समय CO2 ले रहा है और CO2 को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है. दिस मैलिक एसिड विल बी एक्टेड अपॉन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी कंटिन्यूड. तो आज हमने क्या पढ़ा, इस क्लास में स्टेप्स पढ़ लिया. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा PYQ है जो कि 3 मार्क्स में पूछा जाता है. व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये सो ये द फॉलोइंग इवेंट्स मतलब द फॉलोइंग इवेंट्स, दैट मीन्स दिस इज द 3 मार्क का क्वेश्चन. इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस कितने मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज अ 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स पे ये पूछा जाता है. और दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया कि जो कि पूछा जाता है कि वाई डेजर्ट प्लांट रात के समय स्टोमेटा को ओपन करता है. तो आज के लिए इतना. ठीक है, देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस. थैंक यू.